Hello students, how are you? Hope all of you are fine, safe and healthy at your home during the lockdown period and during the vacation. Myself, Professor Ravi Srikhande, welcomes you at the Sanjeevani Education Group for online studies. During this lockdown period, Sanjeevani Education Group has taken an initiative to provide the online study or to provide online coaching for the student of Sanjeevani Education Group. As a part of this initiative, we are going to resume our study again after the vacation. So let us move towards our foundation syllabus. We are going to start a new topic of our foundation syllabus, which is very important as far as the chemistry is concerned. The name of chapter is Basic Concepts of Chemistry. So name suggests that we are going to discuss some basic terms, some basic concept related to the chemistry. Remember one thing, these basic terms and basic concept may increase your interest in the field of chemistry. आपका इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है if you try to understand this basic concept. Okay. As per the study, chemistry is considered as the center of science. We know that chemistry is the branch of science which deals with the study of matter. So यहीं से ही this is the base of chemistry actually. Definition ही chemistry को explain करती है. Chemistry is nothing but the study of matter. Yes, we know that chemistry is the study of chemical, chemistry is the study of chemical reactions, but basically chemistry is the branch of science which deals with the study of matter. Chemistry क्या करती है? Chemistry क्या करती है? Chemistry क्या करती है? Study of matter. It is the science of study of matter. Yes, it is the part of physical science. Chemistry is the part of physical science in which we are going to study the matter. But how we study the matter? Matter को हम कैसे study करते हैं? We are going to study the matter in two ways. Okay, in physical way and in chemical way. Yes, the study of matter is of two types. Okay, we are going to study the matter physically also and chemically also. Means we are going to study the physical as well as chemical properties of matter. See, here in lower classes already you have studied that matter is composed of particle. Matter पार्टिकल से कंपोज्ड होता है. मैटर की फिजिकल स्टेट भी आपने देखे हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज शॉर्टली ऑल दिस व्हाट वी कैन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिगार्डिंग टू द मैटर. जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है या फिर हमें पता होना चाहिए. वी शुड पॉलिश अवर नॉलेज. ओके, जो हमारा नॉलेज है उसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा. सो इट विल बी बेटर फॉर अवर स्टडी. ओके, इन द हायर क्लासेस. जो हायर क्लासेस में हमारे स्टडी को और क्या करेगा, हम ऐसे कह सकते हैं कि इनिशिएट करेगा और हमारे लिए अच्छा रहेगा. ओके, सो सी हियर स्टडी ऑफ मैटर इन फिजिकल एंड केमिकल वे. ओके, सो मैटर इज व्हाट? मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड व्हिच हैज मास. ओके, हमें पता है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. वी नो दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल में भी आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ हो सकते हैं. लेकिन केमिस्ट्री में एग्जैक्टली स्टडी हम करते कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैटर को डिवाइड करना होता है. वी हैव टू डिवाइड द मैटर. सी हियर व्हाई वी हैव टू डिवाइड द मैटर. ओके, व्हाई वी हैव टू क्लासिफाई द मैटर. मैटर को क्लासिफाई क्यों करना है और व्हाई वी हैव टू study the particle of matter. See here, whenever there is a study of biology, okay, whenever there is a study of organism, first we'll try to understand the structure of cell. Okay, because the cell has typical structure. So on the basis of study of cell, we can try to study the animal. And again, on the basis of cell, the organisms are divided into different types. Prokaryotic cell, eukaryotic cell, multicellular, unicellular. So in the same way we have to classify the matter also. Okay, हमें matter को भी क्या करना है, classify करना है. So you know that matter is classified into two groups, pure and mixture. Okay, matter को हम pure और mixture form में क्या करते हैं, classify करते हैं. Again, pure is divided into two groups, that is elements and compounds. Okay, and mixtures are again divided into homogeneous mixture,
and heterogeneous mixture. Okay, so this is what we can say basic classification of matter. Okay, so elements, all of you know about the elements are made up of only one kind of particle known as atom. Compounds are also made up of only one kind of particle known as molecules. Compounds are composed of molecules, elements are composed of atoms. Okay, some compounds which are ionic compounds are composed of ions. So ion से भी क्या होते हैं, composed होते हैं. ठीक है, so इनके हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है. देखिए अभी ये तो क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया है, एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया, कंपाउंड्स में कर दिया, मिक्सचर में भी उसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. तो केमिस्ट्री इसकी स्टडी कैसे करेगा, हाउ वी कैन स्टडी ऑल दिस टाइप ऑफ मैटर्स अंडर द केमिस्ट्री में इसके हम स्टडी कैसे करेंगे. तो हमें क्या करना है, इन सारे कंपाउंड्स को, इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे मिक्सचर्स को दो ग्रुप में डिवाइड करना है. अभी दो ग्रुप में डिवाइड करना है, मतलब स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या लर्न करने की कोशिश करते हैं. In physical properties, we are going to study about the appearance of that particular matter, the physical state of that particular matter, the thermal energy of that particular matter. Okay, again, melting point, boiling point of the matter, color of the matter. Okay, these are some physical properties. Okay, in chemical properties, we are going to study how that particular matter behaves with other type of matter chemically. मतलब केमिकल रिएक्शन जब मैं करूंगा या फिर दो अलग अलग टाइप के जो मैटर होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ केमिकली क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. मतलब रिएक्टिविटी हमें स्टडी करनी है. यहां पर हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टडी करेंगे और यहां पर केमिकल स्टडी करेंगे. मतलब केमिकल रिएक्शंस की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है. ठीक है, तो इनमें हमने डिवाइड कर दिया, प्योर मैटर होता है, मिक्सचर होता है. ठीक है, अभी आप सभी को पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल स्टेट स्टडी करते हैं. कौन कौन से फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, उसके बाद में क्या है, लिक्विड, उसके बाद में क्या होता है, गैस होता है. सो द क्वेश्चन अराइजेस और यू कैन आस्क सर, ऑलरेडी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बहुत ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, हमें बहुत कुछ पता है. हाँ, क्या पता है आप सभी को, solid are compactly packed, liquid particles are loosely packed, and there is no interaction between the particles in the gaseous state. इससे ज्यादा कुछ पता है. Okay, chemistry find out the reason behind the physical state of matter or try to find out the factors which are responsible for the physical state of matter. केमिस्ट्री क्या करता है, हर स्टडीज क्या डिसाइड करता है, व्हाई सच सब्सटेंसेस आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म. ओके, सी हियर, सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन. ओके, आयरन इज सॉलिड, ओके, वाटर इज लिक्विड एंड ऑक्सीजन इज गैस. So the question arises at room temperature. Okay, at room temperature, why these substances are in दिस पर्टिकुलर स्टेट. मतलब नॉर्मल टेम्परेचर को आयरन सॉलिड स्टेट में क्यों है, व्हाई वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड व्हाई ऑक्सीजन इज इन द गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, बट दो द टेम्परेचर इज सेम बट द फिजिकल स्टेट्स आर different. Physical state क्या अलग अलग है. So there is one another factor which is responsible for the physical state of matter, and that factor is known as IMF. All of you know that. What is meant by IMF? IMF means intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction, it is one of the factor, and this factor is again depend upon the thermal energy. ये factor किस पर depend होता है, thermal energy पर depend होता है. If thermal energy is greater, then intermolecular forces are weak. Remember one thing, if thermal energy is greater, intermolecular forces of attractions are weak, and if thermal energy is less, then intermolecular forces of attractions are greater, strong. So we can say that in solid strong IMF. okay, सॉलिड्स में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, लो थर्मल एनर्जी.
थर्मल एनर्जी क्या होगी, लो होगी। गैसियस स्टेट में, इन गैसियस स्टेट IMF आर weak, intermolecular forces of attractions are weak, okay, and thermal energy is very high. Thermal energy is high. Thermal energy क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। Liquids have both the things, intermediate or moderate, okay. लिक्विड स्टेट के लिए क्या होगा, मॉडरेट होगा। सी हियर इन सिंपल वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ द मैटर एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर स्टेट एट द गिवन टेम्परेचर। सी हियर, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, थर्मल एनर्जी इज लो, देन द फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, ओके। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो वीक, okay, and the thermal energy is very high, then the matter is exist in gaseous form. And if the intermolecular forces are loose and the thermal energy is quite moderate, okay, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, then the matter must be exist in liquid form. matter क्या होता है, liquid form में क्या होता है, exist होता है। See here, इसके पहले भी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को पढ़ा है। आप सभी को पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यू हैव स्टडीड द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। इन इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर, if we change the temperature of matter, the physical state also get changed. मतलब temperature बहुत important factor है। Temperature is directly related to the thermal energy and intermolecular forces of attraction. As the temperature increases, thermal energy increases and intermolecular forces decreases. Intermolecular forces of attraction क्या हो जाते हैं, decrease हो जाते हैं, and then you can decide. Again now, one of the most important point you have to remember, the standard physical state of matter. Yes, that is very important fact. Whenever you study the thermodynamics, you should know about the standard physical state. So what is meant by standard physical state? What is meant by standard physical state? यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। At room temperature, iron is in solid form. At room temperature, water is in liquid form. At room temperature, oxygen is in gaseous form. Okay, at room temperature, at standard condition of temperature and pressure, these substances have their particular state, okay, and such physical states are known as standard physical state. Means standard physical state of oxygen is gas, standard physical state of water is liquid, and standard physical state of iron is solid. And one important point, what is the difference between vapors and gases? We call it as a water vapor, not water gas. When water is boiled, okay, the vapors are come out. हम उसको गैस नहीं कहते, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं। So what is the difference between gas and vapor? Okay, see here, we call oxygen as a gas, not vapor. But when we heat the water, it start to boil, उसको हम vapor कहते हैं। Why oxygen is called as a gas? Because the standard physical state of oxygen is gas. The substances which having their standard physical state as a gas are considered as gas, and the substances which having the standard physical state as solid or liquid, but on heating, when those are get converted into gaseous form, those are known as vapors. मतलब जिनकी standard physical state solid या liquid है, उसको हम heat करते हैं and they start to evaporate or they start to convert into gas, then those are known as vapors. उनको हम क्या कहेंगे, vapors कहेंगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। जो सब्सटेंसेस नॉर्मल टेम्परेचर में या फिर जिन सब्सटेंस की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट गैस है, दोज आर गैसेस। बट जिनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट गैस नहीं है, दोज आर आइदर सॉलिड और लिक्विड, बट व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस, डोंट कॉल देम एज अ गैस, दोज आर वेपर्स। वो क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं। दीज आर द बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम टास्क, ओके। मैं कुछ यहां पर टर्म्स लिखने वाला हूं, ट्राई टू फाइंड आउट दिस टर्म्स बाय योर ओन वे।
ओके, एंड इफ यू हैव डिफिकल्टी टू फाइंड प्लीज आस्क मी, ओके, आप मुझे पूछ सकते हो। इस लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, जो कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उस टर्म्स की डेफिनेशन हो या फिर कुछ कंसेप्ट हो, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने फ्रॉम द अदर सोर्सेज, कुछ अलग अलग सोर्स से क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, जितने मिलते उतने फाइंड आउट कीजिए। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट सम टर्म्स, ओके, और डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, ट्राई टू आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दोस टर्म्स आर, कुछ टर्म्स जो है तो मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। लेट अस सी आपको क्या क्या करना है। बेसिक टर्म्स इन केमिस्ट्री, ये टर्म्स अगर आपको पता है तो शायद केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। बट यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आएगा एटम। आपको फाइंड आउट करना है एटम क्या होता है, इट्स सो इजी फॉर यू। आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल क्या होता है, फाइंड आउट कीजिए, किसी भी सोर्स से आपको मिलते तो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको फाइंड आउट करने हैं आयंस, आयंस जो होते हैं उसको फाइंड आउट करना है। उसमें भी आपको आयंस में भी आपको क्या करना है, कैटायन क्या होते हैं एंड एनायन क्या होते हैं, ये भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन यू हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, देन यू हैव टू फाइंड आउट atomic mass number, then you have to find out isobars and isotopes, okay, then you have to find out isotones and isoelectrons, okay। ये terms find out करने, if you are able to find out that's fine, but if you are unable to find out please try to ask me, but do the practice honestly। ये जो करना है आपको वो ऑनेस्टली करना है, या फिर नहीं करना, नहीं मिला है, आसान नहीं किया, कुछ फाइंड आउट नहीं किया, चलो सर तो है, सर एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दिस थिंग्स, यू गॉट द न्यू थिंग्स अगेन, आपको कुछ नए नए टर्म्स भी शायद क्या हो सकते हैं, पता चल सकते हैं, ठीक है। देन वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मोल कंसेप्ट, ओके। और 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे टर्म्स आपने लर्न कर लिए हैं, बट हमारी एक टेंडेंसी कि हम पिछले क्लास का भूल जाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू व्हाट वी कैन से, हम ऐसा कह सकते हैं, रिगेन दोस थिंग्स, ओके। फिर से थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपने क्या रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जो भी आपने पढ़ा है इससे पहले, और इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, जितने भी टर्म्स आपको मिलते हैं, आई थिंक टोटल 10 टर्म्स आर देयर, इसकी डेफिनेशन अगर आपको मिलती है तो आपकी जो नोटबुक है केमिस्ट्री की, उस नोटबुक में इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। एंड यू हैव टू पोस्ट इट ऑन द क्लास ग्रुप, आपको क्या करनी है, पोस्ट करनी है। रिमेंबर वन थिंग, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द फाउंडेशन कोर्स, ओके। और ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देयरफॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग टू दिस। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, आपको समझना है, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ओके। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं कुछ हम जो है तो आगे का एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें केमिस्ट्री में कुछ फील्ड्स है, अलग अलग फील्ड होते हैं एक्चुअली। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते तो केमिस्ट्री में भी कुछ ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस है, ओके। एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी आप उसको देख सकते हो। केमिस्ट्री जो है तो डिवाइड होती है, बेसिक जो 2 पार्ट है केमिस्ट्री के, वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ओके। सो ऑर्गेनिक मीन्स व्हाट, the compounds which are found in the living organism or the find out in the organism, maybe plant or animal, considered as organic compounds। ये तो ancient term है, ओके, ये बहुत पुराना टर्म है।
but now we know that organic compounds nothing but the carbon compounds. So क्या organic compounds क्या होते हैं? Carbon compounds होते हैं, and remaining all compounds other than the organic compounds belongs to the inorganic chemistry. Remember one thing, inorganic chemistry is considered as mother chemistry. Inorganic chemistry को mother chemistry कहते हैं. ये दो पार्ट हो गए. Now for the क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब हमें काउंट करने होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास एक काउंटिंग मेजर होना चाहिए, या फिर हमें उसको काउंट करना होता है, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच है, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज द फिजिकल केमिस्ट्री. उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं. रिमेंबर वन थिंग, फिजिकल केमिस्ट्री इज the very important as far as the qualitative analysis is concerned. Okay, sorry, quantitative analysis is concerned. जब हम quantitative analysis करते हैं तो physical chemistry बहुत ही important है. physical chemistry की भी अलग अलग पार्ट है. physical chemistry के thermodynamic पार्ट है, उसके बाद में electrochemistry है, उसके बाद में kinetics है. ओके, अगेन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर सो मेनी ब्रांचेस. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अलग अलग ब्रांचेस है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बायोकेमिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ता है, पॉलीमर केमिस्ट्री जो होता है अलग पढ़ना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो अलग पढ़ना पड़ता है. ओके, सो देयरफॉर द केमिस्ट्री, व्हाट वी कैन से, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं. इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वो तो अभी मॉडर्न साइंस का पार्ट है. मॉडर्न साइंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शायद ही एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन ला सकती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है जो हीमोग्लोबिन है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोरोफिल है वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, बेसिकली हीमोग्लोबिन और जो क्लोरोफिल है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑफ मेटल्स. तो ये शायद केमिस्ट्री फील्ड में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है. मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा क्या कर सकता है? रिवोल्यूशन ला सकता है. वी आर सो मच डिपेंड अपॉन द केमिस्ट्री. सी यार, जब सुबह से हम उठते हैं तो रात के सोने तक हम टोटली केमिस्ट्री के टच में होता है. टूथपेस्ट से लेके तो रात के खाने तक हो, या फिर रात को भी हम टूथपेस्ट करते हैं, या फिर पानी यूज करते हैं, जो वाटर हम यूज करते हैं, तो ये भी सारे क्या है? कंपाउंड्स है. तो इसीलिए केमिस्ट्री की स्टडी हमें सेंटर में रखनी है. ठीक है, केमिस्ट्री क्या एक सेंट्रल सब्जेक्ट है. ठीक है, केमिस्ट्री यू हैव टू यूज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री यू हैव टू यूज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की फील्ड में भी आपको यूज करना है. मेटलर्जी में भी केमिस्ट्री होता है. तो ये सारी जो चीजें हैं केमिस्ट्री को और एक इम्पोर्टेंस देती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंस हमें क्या करने हैं? स्टडी करने हैं. ठीक है, सो आज आप क्या कीजिए कि सब लोग ये जो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख कर दिए हैं, इनकी डेफिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ये पहला क्वेश्चन है, सपोज इसको डिफाइन कीजिए आप. और दूसरा इसमें क्या करना है? फाइंड आउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. different branches of chemistry and their importance. और उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. दिस इंपॉर्टेंस और दिस टर्म्स यू कैन पोस्ट ऑन द ग्रुप. यू कैन फाइंड आउट, राइट डाउन इन योर नोटबुक, एंड यू हैव टू पोस्ट ओके ऑन द ग्रुप इन योर नोटबुक ऑन सैटरडे. आपको फ्राइडे का वक्त मिल जाएगा. फ्राइडे को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और सैटरडे को आपको इसको क्या करना है? पोस्ट करना है इन बिटवीन 5 to 8. 5 to 8 ही इसको क्या करना है? आपको पोस्ट करना है. इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हो? पोस्ट कर सकते हो. अगर वो डाउट है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको लेना ही पड़ेगा. यू कांट कीप दैट डाउट इन योर माइंड. ओके, सो इट बिकम्स it makes some confusion for you. So please try to clear your doubt. Okay, आप अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश कीजिए. So for today it's okay. Thank you very much student.